हेलो हेलो अथर हेलो अथर okay, just recording your answer, so I'm just repeating it. The idea of bonding lies on the fact that delocalized electrons have lower potential energy than localized electrons, and in order to achieve more and more delocalization as far as possible, the bonding takes place. ठीक है? Delocalization of electrons, obviously that is going to depend on resonance की बात करूँ या covalent की बात करूँ. It is always going to be better for if your orbital containing the electron which is about to get delocalized or get shared are of equivalent size. Okay? It is going to be not that significant, or we can say it is going to be poor, relatively poor, if the orbitals involved are of different sizes. Okay? If there is size dissimilarity, then the delocalization or overlapping dissimilarity is going to be there. Okay? That means potential will not be as lower as expected. Okay? So extent of sharing and extent of delocalization is going to be inherently linked to the sizes of the orbitals. ठीक है? और वो होना भी चाहिए. Just ऐसे सोचो, just मतलब trying to say कि एक जगह पर इलेक्ट्रॉन पहले से डिस्पर्स्ड है, ठीक है, और दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. वो इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ आएगा, इस ऑर्बिटल में आएगा, शेयर्ड होकर के दोनों के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, वो इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में आता है, इट विल ऑब्वियसली फील कंजस्टेड, एनर्जी वाइज कंजस्टेड, राइट. वेयर ये वाला अगर उस तरफ जाता है तो दैट विल बी हेल्पफुल. दैट इज वेयर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज कमिंग फ्रॉम. अदरवाइज इसका यहाँ पर आना इज ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल. Making sense? Okay. Now, okay, these things have come very later on when we started exploring about MOT and BBT. And these ideas which I am connecting to you, or this coherency of bonding has only come to us when we started dealing into BBT and MOT. Okay? The initial round of bonding theories, that is especially the Lewis-Russell theory or Weissenberg theory, okay, valence shell electron pair repulsion theory, they were based on the idea of the initial atomic theories which were there. Okay, that is primarily the Bohr's theory, जहाँ पर particle treatment है electrons का. These were primarily based on those theories. The latter two theories, the BBT and the MOT, are based on the advanced version of atomic theory, where we have started discussing things in terms of electron wave equation. Hello, hello. ठीक है. So the first two theories, that is Lewis-Russell theory and Weissenberg theory, they are going to be based on the idea of particle model of electron, whereas BBT and MOT are going to be based on wave nature of electron, wave nature of electron. ठीक है. अब पार्टिकल सिस्टम में जब हम डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, देयर इज गोइंग टू बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंस ऑफ पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये डॉट्स फॉर्मूले वगैरह के थ्रू हम दिखाते हैं, जहां पर वी शो दैट दीस टू थिंग्स आर शेयर्ड. ये हमारा एक सिंप्लीफाइड नोटेशन है चीजों को रिप्रेजेंट करने का, व्हिच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय मासेस.
ठीक है। साइंस को मासेस तक लेके जाना, लैबोरेटरी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, these things are these are try to attempt, ठीक है। और this theory basically tries to attempt. On contrary, hello Danish, 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 यस सर। वो सर आईडी भेजेंगे, सर अपने पर्सनल आईडी से लेंगे, ओके सर। या 1 सेकेंड रुक जाओ, 11 से 12:30 तक तुम लोग का होना है ना, हो सकता है 471 वाले से पूछता हूँ उनको ले लेने के लिए, 47 ओके वाली सर, आईडी उनको से। लिंक भेजने को बोल दीजिए सर। हाँ मैं बोल देता हूँ। हेलो सर। हेलो, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आपने ये पढ़ा दिया लेविस कॉसल थ्योरी? मैं अभी लेविस कॉसल थ्योरी की पहले की चीजें बता रहा था। So Lewis theory and even Weissenberg theory is just an attempt to explain the interactions of atoms uh, as we could have expected it to happen at macroscopic level. मतलब physical world के level पर दो चीजें अगर interact करती हैं तो जिस तरीके से हम expect करते हैं कि वो interact करेंगी physical bodies, उस तरीके या उसी बेसिस पर हमने लेविस पर्सनल थियरी या लेविस पर्सन ने बेसिकली ये थियरी जब डेवलप करी थी तो ही है दैट दे हैव दैट फिजिकल आइडिया, और उसी फिजिकल आइडिया के बेसिस पर उन्होंने डेवलप किया था। whereas the real bonding theory or the in reality how bonding is happening is quite different from them, that we will come to realize when we start dealing into VBT and demo, ठीक है। इट्स इंटायरली लाइक लाइट वगैरह में आप लोग पढ़ोगे लाइट के चैप्टर में, और लाइट के चैप्टर में और साउंड के चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस देयर इज अ फेनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो द electron sharing is entirely based on the idea of interference of electron waves, ठीक है। it is, or the bondings are entirely explained on the basis of interference of electron waves, ठीक है। however, to begin with, the Lewis and Purcell has proposed uh, I mean they have proposed together proposed this theory, Lewis Purcell theory, जिसमें they have tried to take nitty-gritties from Bohr's atomic model and then tried to explain the bonding between two atoms, ठीक है। and the points of it are like this, ठीक, first वाला point तो as it is है जो देख रहे हो, electrons as particles orbiting around nucleus as explained by Bohr is formed by sharing of electrons between atoms so that each atom can attain nearest noble gas configuration, that is their idea, ठीक है।
This theory gives idea of Lewis dot structure, जिसको कि हम भी बाई करते हैं 90% of the time, but they fail to explain odd electron molecules. ठीक है? वो हम लोग देख रहे थे ना वो कंप्लीट कंपल्सरी नहीं होता हाँ बिल्कुल वो भी उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल करता है. प्लस देयर आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास नॉट ओनली ऑक्सीड कंप्लीट नहीं रहता है, साथ में उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन भी रहता है. ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, बट इट इज अ फेयरली स्टेबल मॉलिक्यूल. नाउ दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड or its stability cannot be explained by this virtue, जो कि हम जनरली सबको बताते रहते हैं बॉन्डिंग के रिगार्डिंग. नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सारे लोग स्टेबिलिटी अटेन करते हैं. सी स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, बट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो आइडिया हमने स्टेबिलिटी के साथ इंटरवीन किया है, दैट्स नॉट ट्रू 100%. It is true only till 90%. Getting the point? हेलो. एक्सप्लेनेशन पार्ट जो पार्ट वो मैंने बता दिया. These are just point. The theory gives idea of Lewis dot structure where electrons are treated as particles and they are shared by dot or cross points such that octets get completed. Basic theory है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बचपन सर को तो ये बेसिकली जो हम लोग बोर्स अकाउंट मॉडल अभी तो फॉलो नहीं करते, एक्सप्लेनेशन अच्छे करने के लिए नहीं, एक्सप्लेनेशन अच्छे करने के लिए नहीं, एक्सप्लेनेशन इजी करने के लिए, सो दैट सबको समझ में आए. अब वेव थ्योरी के बेसिस पर, इंटरफेरेंस के बेसिस पर समझाना तुम्हें भी चालू करेंगे शुरू में. यू आर गोइंग टू बी क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट. जब तक आपने प्रॉपरली ऑप्टिक्स एंड साउंड के इंटरफेरेंसेस को नहीं देखा हुआ है या पढ़ा नहीं हुआ है, तब तक ये थियरी को, आगे वाली दो थियरीज को पढ़ना, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. ठीक है, वो बेसिकली उसके पहले मुझे ओवरलैपिंग करा करके आपको दिखाना होगा. 2-4 इक्वेशन पहले बेसिक बताने होंगे एंड देन ओनली आई कैन स्टार्ट विद दोस थियरीज. तो तुम्हें जब प्रॉब्लम होने वाली है तो किसी भी जनरल XYZ पर्सन को अगर वो थियरीज के बेसिस पर बताना आप चालू करें तो साइंस उनके लिए इट विल बिकम अ नाइटमेयर. ठीक है, एंड स्पेशली 8, 9, 10 के बच्चों को अगर बॉन्डिंग के बारे में बताना है, यू कैन नेवर स्टार्ट विद सेइंग कि अरे ये वेव मॉडल है. मतलब तब SPDF और वाइटल भी अगर बताया जाता है तो वो डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, विदाउट लेटिंग यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ SPDF. मुझे याद है, मुझे 8th स्टैंडर्ड में टीचर ने बता दिया था SPDF और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट ही जस्ट टोल्ड कि ये होते हैं. और उन्होंने भी यही बोला था, मतलब उन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा ये हम लोग को समझ में नहीं आता ऑर्बिट तब तक, फिर अचानक से ऑर्बिटल हुआ. हमने पूछा सर ये बड़े वाले घर के अंदर में छोटा वाला कोना है क्या? अरे हाँ वैसे ही समझ लो. तो ठीक है, तब के लिए 8th स्टैंडर्ड के सॉरी हाँ, सो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वो एक्सप्लेनेशन जब हम स्टार्ट करते हैं, दिस हैपेंस टू बी द बेसिस जहां से वी कैन स्टार्ट. आगे के पॉइंट्स भी इसमें मोस्टली वही है जो तुमको पता है, जस्ट पुट इट डाउन.
पुट इट डाउन इसलिए क्योंकि फोर्थ पॉइंट के बाद है फर्स्ट 3 हो गए दोनों के आप लोगों के, अथर्व एंड हर्षित। यस सर। अथर्व, आर यू डन विथ फर्स्ट 3 पॉइंट्स? अथर्व सामंत, Yes, sir. okay. So, I mean, you just need to know कि कौन से थ्योरी से कौन सी बात आई है, ठीक है ना? जैसे attaining noble gas configuration is the idea which has been the basis of proposition of Lewis dot theory, ठीक है? ये यहीं से आता है, बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, वो भी हमको पता रहना चाहिए। एंड ये हमारे लिए लाइक पॉइंट वाइज लिखवाने का पर्पस ये है ना कि काफी टाइम एमसी व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, तो यू हैव टू चूज अमंग द राइट वन। कौन किस थियरी से कौन कौन से पॉइंट आए हैं, कौन सा नहीं आया है, ठीक है? देन यू शुड प्रिसाइजली बी नोइंग व्हिच ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस थियरी, ठीक है? Just vaguely knowing is not going to help us, and therefore taking it down is important. The key idea is we only consider valence electrons, and in this we only represent the valence electron, not the core electrons. Basically atom को दो parts में इसने divide किया है. One is valence electron system and another is core system. Valence cell को छोड़ करके बाकी जो अंदर के electron plus nucleus है, that is core of the atom, and बाहर वाला जो है orbital या बाहर वाला ऑर्बिट जो है that is valence cell, and it is only valence cell electrons which are going to participate in bond formation, and therefore we are just bothered about valence cell electrons. अंदर वाले जो है वो already पूरा paired up है या ऐसे बोले उनका octet वगैरह पूरा है, they are already at their stable configuration. So if they are at stable configuration, then we don't need to bother about them. We are just bothering or trying to create stability between two atoms by making their octet fulfilled. ठीक है? Yes. Yes. Back to discussion. Only valence cell electrons participate in bond formation. Each atom will contribute at least one electron. They can contribute multiple electrons as well, but at least one electron contribute करना है उनको. Now this is where we are not dealing into dative bonds. ठीक है? So the idea of dative bond is not going to come from this. Or homogenization of dative bond with covalent bonds is not going to come with this. We can't explain the dative bonds related. दोनों इलेक्ट्रॉन जो एक ही एटम देता है, ठीक है? पहला वाला किसको एक्सप्लेन हो सकता है? पहला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्लेन. नहीं, पहला वाला भी नहीं हो सकता है. प्लस माइनस वाला जो है वो कैसे हो सकता है? दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है ना, दूसरा वाला किस दे तो नहीं रहा. तो डेटिव कोई भी नहीं हो सकता है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड. प्योर क्या मतलब? कोवैलेंट बॉन्ड्स को कर सकता है, डेटिव बॉन्ड्स को ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, ठीक है? लेविस डॉट थ्योरी या लेविस कॉसल थ्योरी के बेसिस पर वी कांट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटिव बॉन्ड्स. ये एक ड्रॉबैक, और भी ड्रॉबैक्स हैं जो कि मतलब ड्रॉबैक्स में लिखेंगे अपन लोग. नहीं करेगा ना, आगे करेंगे हम. VBT और MOT में सारी चीजें एक्सप्लेन है. MOT इज मोस्ट एडवांस एंड वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करता है.
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैलेंस बॉन्ड। सर वो एक चैप्टर में है कि वहाँ पे? यही है, इसी में वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, नोटेड, आई मीन रूल 1 ABC, ये आपका पढ़ा हुआ पॉइंट्स है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, डॉट डालना है, 8 ऑक्टेट पूरा करना है, दैट वी हैव लर्न, सो यू जस्ट टेक इट डाउन। सर आइडेंटिफिकेशन, अच्छा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम में कोई इश्यू नहीं होती है ना आप लोगों को? अगर होती है तो फिर पूछ लेना, मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। ठीक है, हाँ मुझे भी लगता है कि नहीं होनी चाहिए, बट इन केस अगर कभी होता है तो फिर यू कैन आस्क, कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन। तो मुझे नहीं मतलब समझ में आता कि कौन सा वाला पूछ रहा है। देखो यहाँ पर रूल्स भी थी, हाँ नहीं नहीं कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है। जनरली होता ये है कि कोई भी इंटरमीडिएट सर वो इलेक्ट्रॉनिक, 4 एटम्स का मॉलिक्यूल है तो 4 एटम का हो या 25 एटम का हो, ठीक है, जनरली ये होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, मेनी टाइम्स ऑक्सीजन रहता है सेंट्रल एटम, बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक दो ही एग्जांपल है जहाँ पे ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, बट वो भी नहीं है। सी, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो होता है जनरली मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम वही रहता है। इंटरमीडिएट एनी एक्सट्रीम वाला जो रहेगा, यानी हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला, दे कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम। जनरली आइडिया क्या है कि सेंट्रल एटम वो हो सकता है जिसके पास दोनों तरफ की एबिलिटी हो, लेने की भी देने की भी। ठीक है, इज इट राइट? Who can be a mediator between two parties? The one who is capable of handling toughness of one and softness of other. जनरली ऐसे ही लोग मीडिएट करते हैं ना, कहीं पर भी जनरल सिनेरियो में। सेम इज विथ हियर, the atom which is lying in between in terms of electronegativity is most capable of, that's a key point। ठीक है, तो अगर नहीं आइडिया था अभी तक तो दिस इज द की पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू हिट द बुल साइड 99.99% ऑफ द टाइम। देयर इज नो H2SO4 है वहाँ पे, कोई ऐसी हो सकता है ना सेंट्रल एटम, बाकी पर कोई नहीं। हाँ यहाँ पर तो क्लियरली विजिबल है, बट काफी टाइम वो विजिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ वो भी है कि फ्लोरीन 3 है तो जो बचा वही एक, वो एक काउंट है, तो N2O5 में क्या सेंट्रल होगा, तो N2O5 में एक ही सेंट्रल क्यों होगा, दो सेंट्रल क्यों नहीं हो सकते हैं? N ही होगा सेंट्रल। ठीक है, जनरली इंटर में मतलब दो से ज्यादा एटम्स अगर इन्वॉल्व है, दो वैरायटी से ज्यादा वैरायटी के एटम्स इन्वॉल्व है, वन हैविंग इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will be the one which will occupy the central position. The low and high end electronegativity atoms are going to occupy the ends. Is it okay? हर्षेद, सर वो आपने N2O5 का क्या केस बोला था? N2O5 का केस मैंने ये बोला था कि N2O5 में कौन सा सेंट्रल एटम होगा, तो चूंकि यहाँ पर दो ही वैरायटी ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली नहीं होगा, द ओनली पॉसिबिलिटी इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोनों नाइट्रोजन जो है वो ये होंगे तुम्हारे क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम्स होंगे, दोनों नाइट्रोजन। इज दैट ओके? यस सर। फाइन।
सर N2O5 का एक बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं नहीं सब बताऊंगा, ठहर जाओ, पहले शुरुआती कॉम्प्लेक्स से मत कर लो। N2O5 नॉर्मली NO2 जो होता है ना, दैट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ठीक है। और N के साथ एक डबल बॉन्डिंग रहती है, एक ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग रहती है और एक पे कोऑर्डिनेशन रहता है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। N2O5 में वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NO2 है और इसका भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज सराउंडेड बाय दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ये होता है N2O5, ठीक है। सेंट्रल बॉन्ड अब वैसे न्यूक्लियस आप ऑक्सीजन को भी बोल सकते हो, डिपेंड्स ऑन, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट सो सिंपल, ठीक है। हाँ, लेविस डॉट में वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, दिस इज द सिंप्लीफाइड लेविस डॉट वर्जन ऑफ NO2, sorry N2O5. Noted all the points. हर से Yes, sir. ये लास्ट पॉइंट में ऑक्सीजन अगर मिडिल में है, जैसे N2O5 में ऑक्सीजन मिडिल में आ रहा है, ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ लिंकिंग बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, वेयर एज एंड में आ रहा है तो जनरली डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड में सिंगल बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में रहता है तो फिर एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे वाले एटम के साथ करेगा, तो फिर वो एंड में रहा नहीं, वो फिर से बीच में आ गया, राइट। अदरवाइज एंड में रहेगा तो वो हमेशा ही डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी सिर्फ एक एटम के साथ अगर वो अटैच है तो वो डबल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा या फिर कोऑर्डिनेशन ले रहा होगा। Okay. Now here are 3 more points. Negatively charged oxygen will be present at terminal and will form single bond. Negatively charged और oxygen. बड़ा इसके पहले ये है negatively charged oxygen O minus. If it is O minus, then it will be, and still it is at terminal, then अरे बेसिकली हाइड्रोक्साइड वाला जो बोल रहा हूँ ना, या हाइड्रोक्साइड है या फिर ये मॉलिक्यूल है NaOCl, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड या NaOCl, सॉरी O2Cl या AOCl2. हाँ NaClO2, ठीक है। इन सब में ऑक्सीजन टर्मिनल में रहता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन टर्मिनल में है, क्लोरीन है, इसके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा, 2 लोन पेयर्स रहेंगे, चलिए 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे और 2 8 माइनस, और Na प्लस इसके साथ इस तरीके से जुड़ा रहेगा इसे। इज दैट ओके? Now that's something which we know because of our advanced knowledge, ठीक है, cannot be very much predicted. I mean initially जब हमने predict किया, ट्राई किया था कि सारी चीजें एक्सप्लेन उस फॉर्मेट में, ठीक है। It has happened that this has been found to be right, ठीक है।
उन्होंने जो गेस वर्क किया वो हमने बाद में देखा कि नहीं सही है। सर तो इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है ना? नहीं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है, ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है। दिस एंटायर थिंग इज वन एंटिटी, ठीक है। और ये एक अलग, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बॉन्डिंग सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही सिस्टम में देयर कैन बी ये क्या बोलते हैं, ionic bond as well as covalent bonds. They can exist simultaneously. पदार्थ में जब एक ही बॉन्ड कोवेलेंट और आयनिक दोनों हो सकते हैं तो दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर ही सकते हैं ना। कहाँ पे? If positive charge is present on the compound, then it will be on the central atom. Subtract this charge from the valence electron. Okay. If negative charge is present on the molecule, it is going to, then it will be present on corner atoms. See, what it means is the okay, ammonia या H3O plus, ठीक है। So ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इट इज बीइंग सेट, इट इज लाइंग ऑन द ऑक्सीजन सेंट्रल एटम। या अमोनियम का पॉजिटिव चार्ज इज लाइंग ऑन द सेंट्रल एटम, इट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑन द साइड एटम, ठीक है। Whereas if it is negative charge, then it is going to be on the side atom and not on the central atom. So negative charges are going to be stable on the side atoms, whereas positive charges are going to be stable on the central atom. Not only this, there is going to be carbonate also. Carbonates are going to be something like this: dou electron, double bond oxygen, दोनों सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। Negative charges of carbonate are lying on oxygen atom as per Lewis theory, ठीक है। रेजोनेंस आएगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। क्या मतलब जब रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो ये रियलाइज कि नहीं, ये लोकलाइज नहीं होगा, ये डीलोकलाइज होगा, ठीक है। एक चीज नहीं होता है, एक आइडिया होता है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। नहीं, वो ऐसे एनर्जी वगैरह नहीं, एक प्रोसेस है जो अभी तक तुम नहीं जानते हो। जब जानोगे तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो आपके सामने रहेगा। दिस वोंट बी द राइट स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरी डिस्क्लेमर, जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेविस थ्योरी में, दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इन 30, 40, 50% of the molecules that happens to also be the real structure or real way of happening, ठीक है। But in most of the molecules that is going to fail. This is one of the very simplistic presentation of molecules. Is that okay? Sir, to be or हाँ। Sorry. हाँ, वो आपको अभी दूंगा। ये पॉइंट्स नोट कर लिया आपने? सर वो ऐड सब्ट्रैक्ट दिस चेंज का मतलब डिस्चार्ज मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, और फिर क्या करें आप
लेविस डॉट बॉन्डिंग बना दीजिए। D and E are additional points that were added by Causal in the Lewis theory. ठीक है? The idea for adding these were they were trying to accommodate the dative bonds. ठीक है? They were trying to accommodate the dative bonds into the framework of Lewis theory. He was trying to accommodate the dative bonds in the framework of Lewis theory. You can take down the Lewis-Bernoulli structure of these compounds if you wish to. If not, kernel core, you guys know about it. I just told you. Want to know that dative bonds in framework of Lewis theory. Lewis dot theory. हेलो सर। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर है, नॉट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ बोलिए ना। सर मैं पॉइंट डी के एक्सप्लेनेशन से पहले इससे डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, देखो पॉइंट डी का एक्सप्लेनेशन ये है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर दिया हुआ है, वी आर जस्ट सेइंग दैट और फॉसिल सेड दैट नेगेटिव चार्ज अगर कोई कभी भी किसी मॉलिक्यूल या आयन पे आ रहा है, दैट इज मल्टी एटम आयन, तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा साइड वाले एटम पे रहेगा। साइड वाले एटम मतलब जो कॉर्नर एटम्स रहेंगे उनके ऊपर रहेगा। ठीक है? और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दैट विल ऑलवेज लाई ऑन सेंट्रल एटम। मतलब किसी आयन में कोई कटायन है जिसके अंदर मल्टी एटम्स हैं, तो सेंट्रल एटम विल bear the positive charge, whereas negative charge will be borne by the corner atoms or side atoms. Is that okay? These two things were added into Lewis dot theory in order to accommodate the idea of dative bonds in the framework of Lewis theory. Okay, such that we can explain the formation of ammonium ion, formation of hydronium ion, or carbonate ions, BF4 minus ion, NaBF4, sodium boron tetrafluoride, or and things like that. इस तरह के dative bonds जहाँ फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ खैर dative नहीं हो रहा है, बट इनमें dative bonds हो रहे हैं, और वो dative bonds के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए we have tried to have this. Is that okay? Yes sir. Fine. Terminal atom and corner atom are same only, no? Terminal atom and corner atom are same.
there is something called as formal charge. ठीक है, formal charge का idea ये होता है, it is a byproduct of Lewis dot theory, जिसमें bonding होने के बाद, ठीक है, because of sharing of electrons, somebody might doesn't have any charge at the beginning of formation of bond, but eventually after formation of bond that might have some charge on it. ठीक है, now those charges are considered or represented by formal charge. ठीक है, it is like formal charges also can be seen as formal representation of oxidation state of an atom in a bonded molecule. ठीक है, it can be treated as oxidation state of an atom in a bonded molecule. Is it okay? And this is explained as the difference of electrons which a neutral atom has with respect to or vis-a-vis the atom in its bonded state. ठीक है, bonded state में उस atom के पास जितने electrons होंगे and non bonded state में जितने electrons होंगे. ठीक है, इन दोनों का difference जो होता है that is given as formal charge on that atom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कार्बोनेट आयन के अंदर कार्बोनेट अच्छा बोलते हैं कार्बोनेट आयन देखते हैं हम लोग या फिर H2O अगर हम देखते हैं तो H2O में हाइड्रोजन के ऊपर कितना क्या फॉर्मल चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज रहेगा. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम H2O. ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम्स पे क्या चार्ज रहेगा. हाँ, क्यों? Core and kernel are same. No, it's not nuclear. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एटम को दो पार्ट्स में लेविस ने डिवाइड किया. He said one thing is your just valence electrons, ठीक है, and the other part is your core or kernel. ठीक है, excluding that valence electron atom में जो भी बचा that is your core or kernel. ठीक है, let us come back to ये हो गया ना. हाँ, फॉर्मल चार्ज के बाद नोट करो. अभी आप पढ़ा रहे हो पहले पढ़ाओगे फॉर्मल चार्ज पहले. अरे फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन मैं फॉर्मल चार्ज ही तो बता रहा हूँ. H2O के ऊपर कैसे कैलकुलेट करोगे. यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल अगले पेज पर होगा ही लिखा हुआ. बट लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर. हाँ, तो नोट करो फॉर्मल चार्ज.
H2O में कितना फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन में न्यूट्रल एटम अगर हम देखते हैं, इट विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास बॉन्डेड फॉर्म में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? -2। इज इट ओके? सर मतलब सर ये ऑक्सीजन स्टेट जो एक्सप्लेनेशन ले रहा है अपना कंप्लीट करने के लिए, सर वो मतलब फॉर्मल चार्ज होता है। सॉरी, फिर से बोलो। सर मतलब अभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है डायमेंशन में, उसको हाँ 8 चाहिए सर, तो फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए सर, वो मतलब ले रहा है इसलिए फॉर्मल चार्ज -2। राइट। और just take the next point down. Believe that all said electrons are properties of each atom sharing them. ठीक है? Formal charge on atom in Lewis structure is equal to total number of free electrons in valence shell. We have to note this part. हाँ, ये पार्ट नोट करो, दिस इज इम्पोर्टेंट। सर फर्स्ट लाइन लिखा है आंसर बिलीव दैट ऑल शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एटम ऑफ शेयर ईच एटम शेयर हाँ, each atom cell. Is it okay? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो एटम बचा आपका, दैट इज योर कर्नल और कोर। ठीक है? एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लेविस डॉट थ्योरी या लेविस कॉसल थ्योरी। इज दैट ओके? So kernel is an atom, kernel is part of atom which is excluding the valence cell electrons of the atom, or a part of atom which is obtained by excluding the valence electrons of the atom. ठीक है? I mean atom is equal to kernel plus valence cell electron. Is that okay? हेलो, ठीक है? ओके, लेट अस कम डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सर को हाफ हाँ, the formal charge on any atom is equal to total number of electrons on unbonded atom, ठीक है, minus number of electrons, sorry, number of lone pair of electrons, ठीक है, that is non-bonded electrons, and minus half the total bonding electrons. Bonding electrons जितने होंगे, we are going to take half of it. ठीक है? So let us now talk about formal charge on oxygen and hydrogen on H2. ठीक है? ये एग्जांपल में हाँ, ये एग्जाम्पल में नोट करो. There are 3-4 एग्जाम्पल जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन से, so that
और फिर आप लोग निकालो फॉर्मल चार्जेस, ठीक है। और ये इस तरीके से है। ऑक्सीजन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन? 6। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4। हाँ, हाइड्रोजन वाला भी उसका इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर रहा है ना वो, ठीक है। अपना वाला शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन वाला भी शेयर कर रहा है। So this is going to be half into 4, that is 0. So formal charge on oxygen is going to be 0. ठीक है? पहले आपने वो -2 बोला था, That was oxidation state. -2 is the oxidation state. The formal charge on oxygen is going to be 0. And by similar calculations, formal charge on hydrogen is going to be 0 again. That will happen in certain cases, not always. ठीक है, that will happen in certain cases जहाँ पर dative bond system आएगा वहाँ पर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, formal charge on carbon monoxide is सर माइनस कहाँ पे? मतलब -1/2 × 4। मोनोऑक्साइड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना, 4 ये हैं और 2 ये भी हैं। Is this okay? तो वो शेयर होता है ऊपर वाला कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट हुआ तो भी तो शेयर होगा ना। तो यहाँ पे 4 लोग हाँ, तो टोटल शेयर्ड में 6 ही होगा ना, ठीक है। सर फिर ऑक्सीजन के जो 2 बॉन्ड रहते हैं वो कार्बन के बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो हाँ। -1 कहाँ पे? हाँ, -1, ठीक है। We have another example in terms of ozone. Here also, it's going to be the oxygen is 2 oxygens are going to form a covalent bond, double bond. 2 oxygens are forming double bond, and 1 oxygen is forming a coordinate bond. ठीक है, dative bond. Now charge on first, second, and formal charge on first, second, and third oxygens are going to be different. First and second will have, first वाले पे formal charge क्या रहेगा? Can we try to find the formal charge on first? हाँ, O3.
यहाँ पे ऑक्सीजन को डिफेक्ट करने के लिए सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। कहाँ पे? नहीं, सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा? डबल बॉन्ड है, दो पेयर शेयर हो रहा है ना, तो जरूरी है डबल बॉन्ड, राइट? हाँ, किस पे? पहले वाले पे ना? हाँ, पहले वाले पे 0 है सर। बट वो जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके पास तो कितने हो रहे हैं? वो देखो, तुम काउंट करो ना, कहाँ 10 हो रहे हैं? तो इधर के 4 हाँ, 4 शेड 4 बस उसको वो शेयर नहीं कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, तीसरे वाले के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सर, तीसरा वाला इसको कोई शेयर नहीं कर रहा है, राइट? सर कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हाफ है ना यहाँ पर, ऑक्सीजन का हाफ फॉर्मल चार्ज क्या आया था? ये हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये सेकेंड वाले के लिए निकाल रहे हो ना, फर्स्ट वाले के लिए। हाँ ठीक है, सॉरी, O2 मत लिखो, सेकेंड वो लिखो, तो फिर भुला जाओगे, और नंबर कर दो उसको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे किया हुआ है नंबर। सॉरी, हाँ हर्षित बोलिए ना, आई एम सॉरी। सर सर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में ना फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का क्या आएगा? 1 ही आएगा ना? Formal charge on oxygen is +1 and that on carbon is -1. ठीक है? सेकंड का भी 0 ही चल रहा है। नहीं, सेकंड का 0 कैसे है? सर टोटल तो 8 होगा ना टोटल। इनिशियली इसके 6 है, ठीक है? फ्री कितने हैं? तो 2 फ्री हैं, तो 6 - 2 कर दीजिए। बॉन्डेड टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो हाफ इंटू 6 कर लीजिए, द आंसर इज +1। क्यों नहीं है? इसके साथ बॉन्डेड है ना। देखिए, और क्लियरली डिजाइन बना के दिए हुए, फिर भी हम लोग कंफ्यूजन हो रही है ना, राइट? सर लास्ट वाला -1 हाँ, ऑब्वियसली। सर तो रिजल्ट कंपलसरी कि -1 +1 का टोटल होके 0 होना चाहिए। तो O3 में कैसा बॉन्ड होगा? सॉरी, फिर O3 में कैसा बॉन्ड होगा? O3 में कैसा बॉन्ड होगा मतलब डबल बॉन्ड होता है एक जगह पर और एक जगह पर सिंगल बॉन्ड होता है। सर ऐसा कंपलसरी है कि सबका नेट कैसे चार्ज सर? बनना चाहिए फॉर्मल चार्ज। कैसे सर मतलब? फिर मतलब कि डबल बॉन्ड हो जाएगा तो जो पहला वाला ऑक्सीजन है जिसने डबल बॉन्ड दिया है उसका तो पूरा हो जाएगा ना मतलब? क्या पूरा हो जाएगा? हाँ, ऑक्टेट तो सबका पूरा हो रहा है, ये दोनों डबल बॉन्ड फॉर्म करके ऑक्टेट पूरा कर दिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी हो गया। अब ये इसके साथ सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका तो पहले से पूरा था। तो हाँ, मुझे मालूम क्या बोल रहे हो? आप बोलो ना। सर वो ऐसा होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज का नेट 0 हो। हाँ, नेट 0 क्यों होगा? फॉर्मल चार्ज का नेट विल बी सेम एज द नेट चार्ज ऑफ द आयन और मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है, सो दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। वेरी गुड, नोट इट डाउन, गुड ऑब्जर्वेशन, नाइस।
सर तो फिर कुछ कंपाउंड में ऐसे KMnO4 माइनस में वो कंपाउंड्स का हाँ, जैसे MnO4, ऑक्सीजन का अकेले का राइट फॉर्मल राइट। चार्ज है। तो वो फॉर्मल चार्ज का समेशन जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। जैसे अमोनियम के अंदर में फॉर्मल चार्ज आप फाइंड करने की कोशिश करें। अमोनियम जो है H H H and H, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑन इट, all the molecules, oh sorry, all the atoms involved. Ammonium, ammonium ion. So the last one पूरा क्या है? Sorry, So the last one पूरा क्या लिखा है? ये दोनों पॉइंट्स पहले लिखो। फॉर्मल चार्ज हमको प्राइमरी आइडिया क्या क्या प्रोवाइड करता है। इट सेज दैट कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, has your electron gained, loosed or have retained all its electron with itself, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग जितना उसके पास पहले था उसके कंपैरिजन में उसने कुछ लूज किया, गेन किया, या फिर सेम नंबर को रिटेन रखा। Many a times this helps us in identifying किसी एटम का मान लो हमको पता नहीं, हम कंफ्यूज हैं कि कितने उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। बाकी सारे एटम्स का अगर हमको पता है एंड नेट चार्ज पता है तो उस पर्टिकुलर एटम के कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, इसका हमको पता चल जाएगा। नाइट्रोजन का कितना आ रहा है 5 माइनस माइनस 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्लस बना आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 के लिए क्या आ रहा है 1 माइनस 0 रिमेनिंग हाफ दैट इज 0 एंड फोर्थ वाले के लिए क्या आ रहा है देयर वर 0 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 यहाँ पे 0 दे रहे हैं। हाँ, बट तुमको कैसे पता इलेक्ट्रॉन
वही तो यहाँ पर प्लस चार्ज बना रहा है, नाइट्रोजन ने वो दिया है इसको, इट हैज वन हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कंसिडरेशन हमारा ये है जो एटम जिस फॉर्म में रहता है और उसके पास जो हाँ उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉट आयन। सी ओवरऑल आप आयन का ही कर रहे हो, बट इंडिविजुअल एटम जो अपने ग्राउंड स्टेट में रहता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में हम चीजें जज करने की कोशिश करेंगे। दिस विल स्टार्ट विद 1, -1 will be 0 and this will have +1 charge. So formal charge of nitrogen will be +1. ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को लेना होता है। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेट। बैलेंस है इन एटॉमिक स्टेट या ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एटॉमिक स्टेट, ठीक है। NO2 माइनस, so can we calculate the formal charge on each atom? नाइट्रोजन में 7 है ना, तो उसका ऐसे कैसे? नाइट्रोजन में 7 का होता है, 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ 5 मतलब बैलेंस में हाँ। स्ट्रक्चर कैसे बना? नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर एक सेकंड क्या क्या इस वाले में इतने डालेंगे ना, डॉट 5 डाल दिया है क्या? 6 डालेंगे। 6 डाला है। सिंगल बॉन्ड, हाँ दैट्स रॉन्ग। यहाँ पर 5 एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल डालेंगे, दैट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर तो सर एंड में भी उसके पास कितना होगा? क्या क्या बैलेंस ये बनने के बाद 4 + 2 + 1 7 ही बचेगा, 8 नहीं होगा। किस में? और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ना 2 2 4 2 6 6 1 7। नहीं, आई थिंक बॉन्डिंग पैटर्न थोड़ी सी ऊपर वाला गड़बड़ है। सही है ना, ऊपर वाला अगर लेंगे तो सही है, नीचे वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। नहीं बता रहा हूँ, the drawing is not very much accurate. I will correct it. It is like this. Oxygen, nitrogen, oxygen,
वो साइड वाले ऑक्सीजन पर आता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप कुछ बोल रहे हैं? सर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आप लोगों को नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोल रखा है मैंने, आप ही करो, ठीक है। एंड सर हाँ सर। दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू कम ऑन दिस एटम, ठीक है। सर ऑक्सीजन को कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलेगा बाहर से? बाहर से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को मिल रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है इसके सर ऊपर। प्लस कैसे आता है? किसके ऊपर? किसका? सेकेंड ओ मतलब ये वाले ओ का बोल रहे हो? आर यू हैविंग? सर फिर उसमें आपने एक वापस भी बनाया था, हाँ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज तो पहले से ये ही इलेक्ट्रॉन, हाँ, so it has 7 electrons, but the ground state में उसके पास 6 electrons ही रहेंगे। माइनस अनबॉन्डेड इज 6 6 है, माइनस हाफ इनटू 2 राइट, तो 1 हो जाएगा, माइनस so -1 उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? 0 ऑक्सीजन के भी 0 ऑक्सीजन के भी 0, ठीक है। Let us talk about this. सर आप बोलिए ना। last oxygen will have -1 charge, formal charge. Right. This third atom will have -1 formal charge, -1. इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर भी 0। पहले 6 और अनबॉन्डेड 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 6 माइनस हाफ साथ ही ग्राउंड स्टेट में जितने हैं उतने लेने हैं। हाँ, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, बट दैट इज नॉट अकाउंटेड। नॉर्मल एटम के रेस्पेक्ट में हम फॉर्मल चार्ज देख रहे होते हैं। नॉर्मल एटम इज अ न्यूट्रल चार्ज एटम, इसमें ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वही तो फॉर्मल चार्ज क्रिएट कर रहा है उसमें ना। ये कर रहे हैं हाँ, और एक इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन आया नहीं, इसकी वजह से नहीं, वो अलग से एक और लेकर के आया है। हाँ, दैट इज व्हाई इट इज NO2 माइनस ना। पहले को वो माइनस ये इट इज एन आयन NO2 माइनस HNO2 था, ठीक है। नाइट्राइट आयन है, वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्राइट आयन। तो इसमें O के ऊपर पहले से एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। So it has 6 unbonded electrons instead of 5. 6 unbonded electrons. ऐसा पहले बना दो, इधर दो इधर दो इधर दो इधर एक दो कंफ्यूजन हो जाएगा। Can we find the this thing? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 6
फास्फोरस फास्फोरस ऑक्सीजन, इस तरीके से इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना हुआ है, या लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो। H4P2O7 या H3PO4 का बनाते हैं पहले हम लोग। कैसे बनेगा? फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस सेल में? 5 2 या फिर 5, नहीं 3 या 5 होते हैं, ठीक है। H3PO4, ठीक है। So 3 oxygens are going to surround it like this, and 1 oxygen is going to be somewhere like this. Let's go cross that line. ठीक है, और H के साथ ये Y, H के साथ ये Y, H के साथ ये Y. Now the bonding pattern is going to look something like this. सर उन्हें एग्जाम में से डायरेक्टली फॉर्मूला से एप्लीकेशन पूछी तो उसके यूज कहाँ पे होगा? आगे कहीं कहीं पर वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में भी होता है। अब देखो, पूछा तो नहीं जाता, अभी मेरे को पूछा नहीं है, मान लो कभी पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा? This is part of our syllabus and hence you need to know. सर तो क्वेश्चन पूछते क्या है एग्जाम में? मुझे समझा नहीं। हम लोग जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो पूछते हैं, क्यों? ऐसे तो डायरेक्टली तो जाते हैं अभी ऐसा नहीं, ये नहीं आता है, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद आप पढ़ोगे, बॉन्ड लेंथ पढ़ोगे, बॉन्ड एंगल पढ़ोगे, वेरिएशन, या फिर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी वगैरह का वेरिएशन पढ़ा। दे आर द थिंग्स व्हिच दे आर गोइंग टू बी मोर कीन एंड इंटरेस्टिंग। जैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं होता, जैसे हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना हाँ, वो भी अभी तक पूछा नहीं है, इट हैज नेवर बीन आस्क्ड, ठीक है। और ये फॉर्मल चार्जेस मेंस वगैरह में तो नहीं पूछा गया है, स्टेज लेवल वाले में कभी कभार पूछा गया है, मतलब मुझे ध्यान है पुराने पेपर्स में मैंने कहीं तो देखा हुआ था फॉर्मल चार्ज। दीज आर वेरी छोटी मोटी चीजें which they don't bother to ask anyone, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेज तक पूछ लेते हैं। Anyway, this is the final compound which I am discussing, क्योंकि इसमें और ज़्यादा टाइम भी देना नहीं है। The bonding patterns are going to be like this. ज़्यादा मिल रहा है इसके रेस्पेक्ट में, ऑक्टेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। हाँ, इट हैज एक्सपैंडेड ऑक्टेट। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, उनको पेपर भेज दीजिए ग्रुप में ना। अरे लेकिन अभी सारी आईडीज यूज हो रही हैं, ठीक है, वो रहने दीजिए, उनको पेपर भेज दिया ना। हाँ ठीक है, उनको करने दीजिए। और वो लोग मतलब कौन नहीं आया है सेंटर पे? और पांच बच्चे आए हुए हैं ना? ओके, और हाँ
ठीक, 25 फिर से नहीं आए। एक काम करिए, उसके पेरेंट्स को बुलाइए, बात करिए तो आज, और उसके पेरेंट्स से बात करिए एंड आस्क। आज अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ पाते हैं तो किसी भी दिन इवनिंग में बुला कर स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है। फॉस्फोरस पे फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा? पेन एंड पेपर हर बार नहीं, अब यहाँ पे मेंटली कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों? 5 minus 0 minus 5, so all of them are basically bonded, 10 pair of electrons है, so 5 minus 5 is 0, ठीक है। phosphorus है 0, what about oxygens? ठीक है, सर वो ये वाले जिसका हाइड्रोजन है ठीक है, वो वाले पे भी देख लो। वो वाले वहाँ पे zero और हाइड्रोजन zero हाँ, सारे एटम्स पे 0 है, तो जितनी उनकी एबिलिटी है नॉर्मल शेयरिंग की, दे आर डूइंग जस्ट दैट शेयरिंग, ठीक है ना। देयर इज नथिंग ऑकवर्ड इन देम, दे आर जस्ट शेयरिंग the electrons in normal ways. That is what the formal charge is indicative of. The number of electrons which is expected to be shared on the basis of their valency is being shared or not, or with respect to that how many extra or how many less electrons are being shared. सर अभी मैंने H प्लस ले लिया और ऊपर वाला ऑक्सीजन पे डाल दिया थोड़ा दिया तो फिर पूरा मॉलिक्यूल प्लस H हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो सकता है हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बेसिस पर हम उसको काउंटर नहीं कर सकते, किसी और चीज के बेसिस पर कर सकते हैं तो वो अलग चीज है। यहाँ की ये पॉसिबिलिटी है, कैन इट really going to exist? It is not only going to depend upon whether its Lewis structure is going to allow or not, ठीक है। It is a complex matter which will be decided on the basis of other things, at least not on the basis of bonding. Merely on the basis of whether the bond can form or not, we are not going to take a call. That is always taken call on the basis of thermodynamics and the kinetics, ठीक है। जिसका एक छोटा मोटा पार्ट है बॉन्डिंग पैटर्न्स, ठीक है। सर बोलिए। सर in H3PO4 of formal charge of O and P both are 0 0. हाँ, all oxygens have zero formal charge, all hydrogens have zero formal charge, and even phosphorus has zero formal charge, and there is no issue in that. Correct. It is not like that this is awkward, this is quite common. CO3 2 minus हमने किया है क्या फॉर्मल चार्ज? नहीं किया है, कर लो। इस कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर 0, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। HNO3 में क्या रहेगा? सर N पे 1 रहेगा और बाकी सब पे 0 0. N पे 1 रहेगा, बाकी सब पे 0। हाँ,
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन में? अभी कितने हैं? अभी तो 10 है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 10 10 कहाँ है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स? सर आपको सर बताओ सर देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 10 का है बॉन्डेड। 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा ठीक है? Is this okay? So nitrogen has a formal charge of +1. This oxygen has a formal charge of 0. This oxygen has a formal charge of 0. This oxygen has a formal charge of -1. ठीक है? Is it clear? और ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना? ये +1 चार्ज है Fc। हाँ, नेट 0 है क्योंकि मॉलिक्यूल सर यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बना रहा है तो इस पे नेगेटिव आ रहा है। हाँ, कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन बनेगा तो उस पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। दैट्स ट्रू, ठीक है ना? क्योंकि वो दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बना करके उसको शेयर कर रहा है। दैट इज व्हाट फॉर्मल चार्ज इज इंडिकेटिव ऑफ। क्लियर? SO3 में देखो, फॉर्मल चार्ज, सॉरी सल्फर वाले में कितने हैं? 2 2 4 और 4 4 8। बॉन्डेड 8 ही है ना? 4 यहाँ पे, 4 ये, 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। तो 6 - 4 इज +2। यहाँ पर क्या रहेगा? फॉर्मल चार्ज 0। इस पर क्या रहेगा? फॉर्मल चार्ज -1। इस पर क्या रहेगा? -1। दैट इज हाउ द बॉन्डिंग इज। इज इट ओके? सर S वाला एक बार वापस से explain। देखिए, S में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। Is that okay? Hello. Yes, sir. So half minus 8 is +2. Sulfur will have a +2 charge. Is it okay? Hello. हाँ, सर तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ नहीं बना। it's their Lewis distance. So they cannot explain the Lewis causal theory cannot explain the existence of electron deficient Lewis acid compounds or hypovalent compounds.
hypovalent compounds, or these are also known as Lewis acids or electron deficient compounds. Is it okay? Next point is, the examples are these. It cannot explain the existence of many hypervalent compounds as well. Expanded octet. Hypervalent means expanded octet compounds in which central atom has more than 8 electrons. ठीक है? Obviously that happens because they have vacant d orbital in which they can accept electrons, and therefore they are behaving in that manner. We have these examples in front of us. There is a reason, I mean, PF5, PCl5 does exist with expanded electrons. NCl5, NF5 or NBr5 do not exist, because they cannot form expanded octet because they do not have vacant d orbital or they do not have d orbital. Okay? Whereas phosphorus forms these compounds, pentavalent compounds, because they have vacant d orbitals and they can expand their octet. Please take it down. This is something which is generally asked. वो NCl3 बनता है NCl5 NCl5 नहीं बनता है, जबकि PCl5 बनता है। ये कुछ स्टडी होगा उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, मतलब इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट एंड एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स और यूजिंग दैट ऑर्बिटल. सर ये PCl3, PF3, PBr3 और PI3 इसके एग्जांपल हैं। किसके? सर हाइपरवैलेंट मींस एक्सपेंडेड ऑक्टेट और हाँ, हाइपर वैलेंट का मतलब एक्सपैंडेड ऑक्टेट. हाइपर वैलेंट कंपाउंड मींस कंपाउंड विद क्या क्या, सॉरी सर वो जो PCl3, PF3 वो सर स्टेबल एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के एग्जांपल हाँ, यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स में लिखा हुआ है ना, these all are stable existing compounds. ये यहाँ पर भी ये stable existing है. This is a stably existing compound. These all are stably existing compound despite of being with expanded octet. Is it okay? But these compounds do not exist. ये वाले भी stable existing compounds, no doubt about it.
सर तो वो जो PCL थी वो तो एग्जिस्ट होता ही है। PCL 3 है वो एग्जिस्ट तो होता ही है। बिल्कुल PCl3 NCl3 NF3 NBr3 PF5 PVR5 PVR3 IPI3 PF5 PCl5 PVR5 PI5 भी एग्जिस्ट करता है बट वो थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, ठीक है। दैट कैन रेडियली डिकम्पोज इनटू PI3 बिकॉज आई का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। But NCl5, NF5, NBr5 do not exist or Ni5 do not exist because nitrogen do not have vacant d orbital and hence it cannot expand its octet. Is that okay? हेलो, आज क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह को समझने में हमें थोड़ा सा हेल्प देगा, ठीक है। साइन फंक्शंस वगैरह के साथ हम लोग को डील कर, हाँ बोलो ना। बोलो। सर मैं मुझे मतलब एक डाउट था सर, वो बोलो। डाउट फिजिक्स से डाउट था क्या? सर। मैं ओमेगा ना टी। मतलब वो हाँ, आई एम एट द सेंटर। सर वो मतलब फॉर्मूला क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अथर। सर एक HCl वर्मा का प्रॉब्लम है सर। हाँ, वो मतलब ना मैं सर कितने बार भी ट्राई किया सर, मेरा आंसर वही आ रहा है लेकिन कुछ मैच नहीं कर रहा। कौन सा क्वेश्चन है एनसी वर्मा को? वो फोटो लेकर के भेज देना ना, मैं देख लूंगा, हाँ ठीक है। सर वो एक्सप्लेन मतलब कि क्या क्या? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर दूसरा लेक्चर नहीं होने वाला है। कि नहीं, दूसरा लेक्चर आज नहीं होने वाला है, एक ही लेक्चर है। मतलब ये थियरी वाला पीछे चल रहा था तो मैंने सोचा एक लेक्चर ले लेता हूँ। पीछे मतलब मेरे हिसाब से एक दिन नहीं हुआ लेक्चर ना, तो इसलिए इसका ले लिया। एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वी आर अप टू द मार्क, सो दैट डज नॉट नीड टू बी डन, ठीक है। अभी मैं दो चीजें जो बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। ये साई फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। अब अगर साई 1 और साई 2 को मैं ऐड करता हूँ तो व्हाट विल हैपन? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? हाँ सॉरी, A sin omega t plus px plus A sin omega t plus उसको px ये plus साइन theta। को कॉमन नहीं ले सकते हैं। क्या? ऐसा नहीं ले सकते, ये साइन को कॉमन नहीं ले सकते। बिटेगा? हाँ, नहीं, कंपाउंड एंगल्स एंड ये मल्टीपल्स आप लोग को पढ़ाया गया था इस तरीके से। cos हाँ सर, cos c cos A plus, plus B plus C सब right, और cos sin b A B। is equal to something something something, या cos a plus cos b, या similarly sin a plus sin b is equal to something something something। तो हाँ सर बताया था। वो समथिंग समथिंग हाँ समथिंग सर। के हिसाब से इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आता है। हाँ सर। बैक ऑफ द पेज में नहीं, या रफ चाहिए तो है मेरे पास, उधर से जाके लाना पड़ेगा और फिर इसमें से एक निकाल लो। रुको एक मिनट, एक मिनट। सर लेकिन ये तो ये वाले फॉर्म है ना, मतलब sin ऑफ A plus B और
वो सेकंड वाला साइन ए प्लस बी प्लस सी के ओ अच्छा हाँ, हाँ, हाँ,